Hello, everyone. Wishing you all a very happy new year. And we are back with our series on Insta Live. So, as today's topic is about weight and women health, and we will have our colleague Miss Tanu Gupta joining us very soon to discuss this important topic. All of us have been to New Year parties, making New Year resolutions, thinking about weight and good looks and appearances and good health along with this. So, in just a few moments for now, uh, we will have Tanu joining in. Hello. Hi, TJ. Hello, how are you? I'm good. Thank you. How are Same to you? you. Happy New So, Year. very quickly, we will start with our topic Yeah. today. So, जैसे हम सबने देखा Yes. अभी सब लोग वेट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं. All न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, large part is around weight, and so we are going to discuss about weight and women health today. And we will take up different stages. To begin with, अब अक्सर लोग जब वेट की बात करते हैं तो ज्यादातर ये गुड लुक्स के लिए है या है ये हेल्थ के लिए है. आजकल यंगस्टर्स को लगता है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे तो हैं, व्हाई डू वी नीड टू रिड्यूस वेट और गेट स्लिम. एंड आई अग्री, सबको ही जीरो साइज Mm. नहीं हो सकते और सबको जीरो साइज या इवन कमिंग टू नॉर्मल बीएमआई is not is the only goal for everyone. What is more important is that at whatever weight you are, even if you if you're too much out of range, then try to come a little towards the range. और जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं Yes. कि आपके ब्लड पैरामीटर बराबर होने चाहिए. ठीक है. आपकी Right. अगर विमेन के लिए स्पेसिफिकली बात करें, आपके पीरियड साइकिल नॉर्मल होने चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी है, डाइजेशन अच्छा है, देन you are at least Mm. on a safer track, preventing yourself from diseases, because otherwise overweight and obesity can lead to a lot of chronic disease issues, a lot of health problems and parameters. Yes. और Right. Right. रिसेंटली एक स्टडी हुई जिसमें ये पूछा गया कि भाई अगर अपीयरेंसेस को लेना है या हेल्थ को, व्हाट विल women choose. So the Choose. findings were exactly Right. what's on your mind. Yes. Please. हाँ. Yes. It's all Yes. about the looks, I And must say. for that, people have taken different. So what's your take? What would women usually do if they're just about focused on appearances? See, if a woman is just like want to lose weight for just being like looking a pair, they want कि उनका एक enhancement हो, body बहुत shape में आ जाए, they have a sexy figures. Usually इसमें there is a misunderstanding. हम लोगों को समझना चाहिए कि healthy nutrition एक part play कर रहा है, क्योंकि वो आपकी body को internally ठीक करेगा. अगर आप क्विक रेजोल्यूशन से क्विक रिजल्ट्स या चाहते हो और आप फॉलो करते हो वो रास्ते जो कि आपको क्विक वेट लॉस तो दे देंगे, फॉर एग्जांपल क्रैश डाइट्स, योयो इफेक्ट एंड मेनी मोर विच वी सी इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन फेसबुक, यूट्यूब, जो भी सर्च करते हैं. विदाउट नॉलेज कुछ भी चीज करी जाएगी वो ऑब्वियसली आपको ड्रास्टिकली एक ऐसे खाई में गिराती है जिसका आपको फ्यूचर एस्पेक्ट खुद को नहीं पता कि क्या वर्सन होने वाला है. So for me, it is very important when you are following a weight loss program, और अगर आप चाहते हो कि हम लोग weight loss करें तो वो एक healthy manner में करें, rather than जो एक आपको half knowledge है उसके हिसाब से करना या look के हिसाब से करना मेरे लिए matter नहीं करता. Because if we have watched that latest movie which is Excel, I think so, of Sonakshi Sinha, where she says, for me, body और जैसी मेरी look है, I'm happy with that. It is not for me that I should go with a crash diet and weight loss की बात करें. लोग सालों बाद में मिलेंगे तो यार ये नहीं कहेंगे कि तुम कैसे हो, वो ये कहेंगे यार तू पहले से मोटी नहीं हो गई है,
तो पहले से पतली नहीं होगी है। तो ये यूजुअली बना हुआ है सर्कल माइंड में कि हमें लोगों को अपीयरेंस से जज करना पड़ता है, बट दिस इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। तो इसमें आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रैक्टिस जरूर फॉलो करें ताकि आपका एक अच्छा सस्टेनेबल वेट बिल्कुल अचीव ठीक हो बात सके। तन्नु, जैसे आप बोल रहे हो, तो एक अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे लाइफस्टाइल, स्लीपिंग ऑन टाइम, टेकिंग गुड केयर, एक्सरसाइजिंग, एवरीथिंग टेक्स अ पार्ट। या तो आज जो हम बात एवरीथिंग। करने जा रहे हैं वो ये, वी विल टॉक अबाउट 4 important stages or kind of periods of a woman's life. Number 1 is their menstrual cycle. Number 2 is about conception. Number 3 is about lactation, and number 4 is menopause. So these are very important topics, but we don't want to make the session too lengthy, so we will be staying to the point और इसको crisp रखने की कोशिश करेंगे, so that हम ये बात अपनी समझा भी सकें यस और people can get to understand what we want to tell them also. तो यस सबसे राइट पहले राइट। जब हम बात कर रहे हैं एक पीरियड साइकिल की, तो जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है, एवरेज उसका डिफरेंस होता है 28 डेज साइकिल का, कि 28 डेज में आपकी साइकिल दोबारा आ रही है, पेन नहीं है, और आपको पेन किलर्स नहीं लेने। नेचर ने कभी इंटेंड नहीं करा कि भाई अगर आपको पीरियड्स होने हैं तो उसमें बहुत सारा पेन होगा, आप 3-4 पेन किलर्स लोगे दिन के, और you'll be going through a lot of commotion with your body कि ऑफिस से छुट्टी लेने पड़ रही है या स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, ऐसे सब। तो तनु, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ मेटाबॉलिक बैलेंस कंसल्टेंट, आप बताओ कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो इनको बना रही हैं या इन इन सिम्टम्स को ला रही हैं? सी अगर अगर हम बात करते हैं आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में या सिम्टम्स के बारे में, होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन आने से पहले ही आपका 10 डेज का एक ऐसा इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता है जिसमें बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। उस टाइम पे यूजुअली अगर देखा जाए 10 डेज पहले ही लोगों को कहते हैं हमारे में बॉडी में फुलावट आ गई है मैम, थोड़ा वेट पुट अप हो गया है, ब्लॉटिंग हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हेडेक्स हैं, फुलनेस इन द ब्रेस्ट, टाइटनिंग हो रहा है, पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, देयर इज स्वेलिंग इवन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एज वेल। तो स्टडीज क्या शो कर रही हैं कि आपके जो 10 डेज प्रायर मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में हो क्या रहा है कि आपकी ओवरीज जो है वो लीस्ट एक्टिव होती हैं, दे आर नॉट एक्टिव एट ऑल एट दैट टाइम। सो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड कैल्शियम जो है वो इनफ ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीकन फील करना शुरू कर देती है या आपको क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। सो ब्लड कैल्शियम ड्रॉप फर्दर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी आपका फर्स्ट डे में ही कैल्शियम ड्रॉप हो रहा है, तो आपको मसल क्रैम्प्स भी फील हो रहे हैं। आप कहीं देखोगे कि दे जस्ट लाई ऑन द बेड कि हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहा है, इतनी पेन हो रही है। तो कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि कन्वल्शंस होने शुरू हो जाते हैं जिसमें एक्सट्रीम ब्लड लेवल ऑल भी ड्रॉप हो रहा है, मतलब इतना डेंजरसली लो हो गया है आपका कैल्शियम कि आपको बाथरूम में भी गिर सकते हो, आपको चक्कर भी आता है। आजकल हम देख रहे हैं टीनेज गर्ल्स में ये प्रॉब्लम काफी आ रही है। बोथ प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन एंड आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आपकी बॉडी में इनफ कैल्शियम है। अब अकेली बात आ रही है अकेली कैल्शियम की, लोगों के माइंड में एक मिथ है कि दूध पियेंगे हम तो दही भी खा रहे हैं तो कैल्शियम कम कहाँ से हो गया। दे आर नॉट कंसीडरिंग दैट वेजिटेबल पार्ट्स। तो वेजिटेबल्स एक रिच सोर्सेज हैं कैल्शियम के, स्पिनच की वो। अब अकेला कैल्शियम के अब्जॉर्ब करने में क्या कैल्शियम अपने आप से डाइजेस्ट होगा? नो। इसके लिए फर्दर हमें कंसीडर करना है कि विटामिन डी आपकी बॉडी में पूरा है कि नहीं है, मैग्नीशियम पूरा है कि नहीं है। जब ये तीनों कंबाइन होंगे तब जाके कैल्शियम जो है उसका स्टोर होगा बॉडी के अंदर, और ये आपको एक लेवल तक पहुंचाएंगे कि आपकी बॉडी इस पीरियड्स को झेल पाए और आपको पेन ना हो। तो यूजुअली द इफेक्ट इज ऑन मोर कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरॉन। तो हमें इन चीजों को फोकस करना है कि हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को पहले ही अगर बॉडी में पूरी है तो ऑब्वियसली पीएमएस का होना और पीरियड्स के टाइम पे पेन होना काफी हद तक कम होता है बिल्कुल या ठीक। होता ही नहीं है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली गर्ल्स, कि अगर आप अपने फूड में वैरायटी रख रहे हो, अपने प्रोटीन्स अच्छे से ले रहे हो, अपनी दालें अच्छे से खा रहे हो, नट्स एंड सीड्स अच्छे से ले रहे हो। लोग बोल रहे हैं दालों में क्या, दालों में कितना कैल्शियम है? आपके राजमा, चने, इस सब में, आपके डेयरी में, पनीर में, यस सबसे आपको कैल्शियम मिलता है। आप ये अच्छे से खाएं, अपनी सीड्स अच्छे से खाएं,
और जैसे तन्नू ने कहा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स की वैरायटी, सो दैट योर आयरन स्टोर्स आर आल्सो टेकन केयर ऑफ। तो ये सारी चीजों को Also मद्देनजर enhance. रखेंगे तो Yes. पीरियड पेन नॉर्मल नहीं है, नहीं होना चाहिए। आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो नेचुरली ये सारी चीजें ठीक होती रहेंगी। जैसे हमने Yes. पहले बात करी Yes. कि जब भी अगर फॉर एनी वुमन एट एनी स्टेज अगर ब्लड पैरामीटर्स, स्लीप, डाइजेशन या स्किन इश्यूज कहीं पे भी कुछ गड़बड़ आ रही है, इट इज टाइम टू रीलुक एट योर डाइट, consider going to a dietitian, Yes. check that you are eating balanced meals, balanced nourishment, so that you can live a healthy, a fruitful life. Aspire, you can chase your dreams, you Fruitful can life. do whatever you like to, you can be active. ऐसा नहीं कि भाई हम अपने मन की कर ही नहीं पा रहे या हमको तकलीफ हो रही है। ठीक बात। So going Yes. to the next stage now, it's about conception. सो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई ओवरवेट है या ओबीस है तो कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इवन फिर पीपल हु हैव पीसीओडी या पीसीओएस हैव दिस मेंटल टेंशन आल्सो कि कंसीव कैसे होगा, क्या होगा, हार्मोनल हेल्थ अच्छी नहीं है। और ये देखा भी गया है कि 47% ऑफ ओबीस वुमेन हैव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ना सिर्फ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, Right. लेकिन एग की क्वालिटी इंपैक्ट होती है। देर इज हायर रिस्क फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज जैसे प्री टर्म बर्थ, प्री इक्लेम्पसिया, जेस्टेशनल डायबिटीज, रिस्क ऑफ मिसकैरेज, इतनी सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपने वेट को जरूर कंट्रोल करो और ये चीजों का ध्यान रखो सो दैट। तो द आंसर कमिंग फ्रॉम पीपल इज कि आईवीएफ करवा लेंगे ना, वो तो हाँ, IVF कि अब करवा ऐसे लेंगे। नॉर्मल नहीं कंसीव हो रहा तो आईवीएफ तो है। बट फॉर लेडीज प्लीज अंडरस्टैंड, आईवीएफ इज ऑल्सो नॉट इजी व्हेन यू आर ओवरवेट और ओबीस। आईवीएफ मतलब जो ओवरवेट या ओबीस फीमेल्स हैं उनको आईवीएफ की मल्टीपल साइकिल्स लग जाती हैं एंड एग क्वालिटी इतनी To अच्छी नहीं conceive. होती। Right. तो तनु जब ऐसे केसेस में अब क्योंकि इतना प्रेशर होता है फैमिलीज का कंसेप्शन के लिए और ये सब, हाउ आर विमेन एज इन व्हाट यू हैव कम अक्रॉस, वो कैसे डील करते हैं, क्या एडवाइस डॉक्टर्स करते हैं, कैसे ये सब है? तो यूजुअली मैम लोग क्या करते हैं जब उन डॉक्टर के पास गए हैं, है ना, डॉक्टर ने कह दिया प्रेगनेंसी नहीं होगी अनटिल अनलेस यू लूज वेट, राइट। डॉक्टर ने इतना कह दिया तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जस्ट टू लूज वेट का टारगेट बन गया, लेकिन हेल्दी मैनर वो भूल गए हैं कि किस तरह से लूज करना है। what they do, they go to certain uncertified or people, or they just follow the Facebook, whatever is available on the social media. They start doing that, incorporating that thing in their life, like following a crash diet, following the supplement meal replacement. तो एक अभी आपने भी पढ़ा होगा, अभी एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें दिखाया गया है कि जिन लोगों ने मील रिप्लेसमेंट करके वेट लॉस करा है उनके साथ जो एग क्वालिटी है वो भी गिरी है। they are not able to conceive, or there is some deformities if the kid is born. So these things have to be considered that अगर चाहे वो आप लो कैलोरी डाइट कर रहे हो, चाहे आप क्रैश पे जा रहे हो, आप और बहुत सारी डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स हैं, मेनी डाइट्स जिनको अभी भी रिसर्च ने ऐसा इतना कुछ मार्किंग नहीं दिया है कि यार दिस इज द हेल्दी वे टू लूज वेट। जब आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी है, उसको जब तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली जो आपका इंटरनल हार्मोनल बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से फर्दर जो आपकी प्रॉब्लम्स वो इंक्रीज होंगी रेदर देन गेटिंग डिक्रीज। आपने एक मील रिप्लेस कर दिया हाई मील रिप्लेसमेंट देके, लेकिन वेयर आर योर विटामिन्स एंड मिनरल्स? Is your body able to digest that enough protein at that time? You're not working out. I watched recently a video of John Abraham where he said that for 2 hours I go with a hard workout and I consume 200 gram of protein per day and I work out like a hell. So same if we take with a layman, और चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और XYZ person है, if he is taking 28 gram of protein and not doing any physical workout, just keep on consuming that protein without any vitamins and fats, healthy fats. So what is happening in the body? Excess
urea will be created, there will be excess levels of nitrogen. Obviously, the kidney is going to be get affected in the future term, and weight loss to ho jayega, no doubt. But what about the skin health? What about the internal hormonal balances? What they are disturbing, and moreover, the eggs, the like ovaries are not going to produce the good quality eggs, right? So this is what it is affecting time on time and with step. So I always prefer, जब भी मेरे पास कोई client भी आता है, तो they say कि मैम we are fail. I had a case from Roper, तो they said कि मैम 5 years हो गए हमें डॉक्टर्स के पास भटकते हुए, but we are not able to IVF भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. तो उनको जब कंसेप्ट समझ में आया कि हाउ द राइट न्यूट्रिशन अप्रोच एंड विद अ हेल्दी वेट लॉस प्लानर, so you are able to overcome this problem, and she conceived after 5 years within 4 months after Wow. doing this metabolic balance program, and she's very happy today. Yeah. So this is how the cases comes true when it the right approach to the right nutrition बिल्कुल is यही like तनु, there. आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब लोगों को ये क्लियरली समझना होगा कि अगर एग बन रहा है या मान लीजिए शरीर का कोई भी सेल बन रहा है, आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, वो भी तो आपके खाने से बन रहे हैं, है ना? तो उस सारे Right. को समझने के लिए कि वो खाने से बनना है, तो हमें पहले खाने पे ध्यान देना है कि हम क्या नरिशमेंट ले रहे हैं, खाने पे कितने ध्यान देना. न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और कैसे हम इसको कर रहे हैं. तो उन अगर नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगी, जस्ट सेकेंड, नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो ये चीजें बन नहीं पाएगी. एग क्वालिटी हैम्पर होगी, आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, आपका अगर यूट्रस की लाइनिंग बराबर नहीं बन पा रही, ये सारी चीजें इम्पैक्ट होती हैं और ये सब कुछ खाने से शुरू है. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट खाने फूड पे. हैज टू प्ले इन दिस. एंड एज इन मेटाबॉलिक बैलेंस हम लोग यही बात करते Yeah. हैं कि पहले तो डेफिशिएंसीज कवर करके हम आपके बॉडी को बैलेंस में लाएं, उसको सही करें. बॉडी अपने आप वेट लॉस कर देगी, लेकिन अच्छे से अपने जो उसको एंजाइम्स, हार्मोन्स चाहिए वो बना पाएगी. बना पाएगी. Right. Right. So Tanu, now going to lactation, this is one phase जिसमें लोगों को अब इन अपर सोसाइटी, अभी लोअर कम्युनिटी में तो फिर भी बिकॉज ऑफ द बाइंग कैपेसिटी और सो अभी भी मदर्स फीड करा रही है. बट कमिंग टू द हायर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, यहाँ ये लैक्टेशन कुछ कम होने लगता है या ये स्टेज पे वेट लॉस का आप मतलब व्हाट डू यू थिंक? तो मैम ये क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यूजुअली हम देखते हैं कि सोसाइटी है, अपर क्लास है, या हम लोग इन्फ्लुएंस है सोशल लाइक सोसाइटी में बाउंड रहने के. फीमेल्स को यूजुअली होता है कि उनका शेप खराब ना हो जाए. इफ आई ब्रेस्ट फेड अ चाइल्ड ऑफ माय चाइल्ड, तो आई ऑब्वियसली गेट आउट ऑफ द शेप. तो एक वो उनके अंदर एक ट्रॉमा चला जाता है कि अगर मैंने बेबी को फीड कर दिया तो वो बॉडी शेप विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड, राइट? और कुछ ऐसी फीमेल्स देखोगे कि वो 3-3 साल तक फीड करना ही नहीं छोड़ते हैं. तो व्हाट आर द लाइक योर कॉल ऑन लाइक वुमेन में गेटिंग बैक इनटू शेप? हाउ यू लाइक कंसीडर दैट कि लैक्टेशन एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ना ही वुमेन उससे अपनी शेप में भी वापस आ रही है, और किस तरह से वो पॉजिटिवली साइन शो कर रहा है इन फीमेल्स में? तो सी व्हेन वी टॉक अबाउट Yeah. कंसेप्शन, प्रेगनेंसी की बात करी तो हम व्हाट वी एडवाइज इज, though metabolic balance we don't tell people to start during when you're pregnant or lactating, लेकिन उससे पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक अच्छे खाने का तरीका समझते हो, सो दैट प्रेगनेंसी एक ये फ्री टाइम नहीं ले लेते, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी हो गया, अब तो जो मर्जी खाओ, हम कोला भी पी लो, ये लिम्का पी लो, अब दिल जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सो पीपल ईट विदाउट थिंकिंग, अननेसेसरी वेट पुट ऑन करते हैं. फिर लैक्टेशन के टाइम उनको एकदम से लगता है वो अब तो बेबी हो गया, पर मैं तो अभी इतनी मोटी रह गई, मैं कैसे होंगी. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आज के टाइम में व्हेन वी आर हैविंग जस्ट वन और टू चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे तो नहीं हो रहे हैं, एक से दो बच्चे कर रहे हैं, उसको टाइम दो. इफ it has taken you 9 months to deliver a baby, at least give yourself 9 months to a year to get back in shape. Don't be in a hurry. If you do crash diets during lactation period, आपकी मिल्क क्वालिटी सबसे पहले इम्पैक्ट होती है. आप अपने बच्चे के नरिशमेंट से खेल रहे हो.
उसको प्रॉपर right, नरिशमेंट नहीं मिल पा रही, मिल्क की क्वालिटी इतनी हैम्पर होते जा रही है. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ बट हिज इम्यूनिटी, हिज ओवरऑल वेल बींग. और उसके बदले में आपको प्रोटेक्शन मिल रही थी डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर से, आप तो वो भी खत्म कर रहे हो. yes, जो क्रैश डाइट्स पे जा right, रहे हैं, डाइट सोडाज right, कोलाज पी रहे हैं, हाउ डू यू फील दैट पी योर रहे हैं चाइल्ड विल गेट इनटू अ गुड हेल्थ. और वो जो बॉन्डिंग, वो जो प्यार बॉन्डिंग good एक health. मदर के साथ रह के बच्चे को मिलता है, वो लूज हो रहा है. फिर लोग बोलते हैं बच्चे परवाह नहीं कर रहे, हमसे ठीक से बात नहीं करते. वो जो शुरू के टाइम की बॉन्डिंग थी वो बहुत मैटर करती है. बहुत मैटर करती है. इवन आई थिंक सो कि ये चीजें आगे फर्दर ब्रेन डेवलपमेंट को बिल्कुल. भी अफेक्ट तो करते हैं एक, बच्चे के. हाँ, बिकॉज एक व्हाट ये द टाइम मैं कहूंगी मेजर लैक्टेशन के टाइम में, प्लीज, दिस इज वन टाइम वेयर आई वुड सजेस्ट ऑल women नॉट टू बी इन अ हरी टू लूज वेट. ईट हेल्दीली, लेट योर बॉडी कम इन टू शेप आराम आराम से while your child is feeding. एंड फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे जाए, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें, लेकिन बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें. and yes, while when a female breastfeeds, I think so there is a hormone oxytocin which releases up and which let your pelvic bones to get back into shape. So this is a thing which should be cleared among the lactation and the mothers who are pregnant and to the ladies or the girls who are like ready to conceive. तो आप अपनी शेप को उस टाइम भूल कर just focus on the right बन गया way ना. of feeding a child, right? Your yes, yes. हाँ. So, very quickly, Yeah. we head to the last stage, that is menopause, which is a natural biological process, which marks the end of a menstrual cycle. ठीक है. अब तनु, हमने हर स्टेज पे बात करी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसका इशू है, और उसको कैसे ठीक करना है. तो मेनोपॉज में आप गुड न्यूट्रिशन के क्या वैल्यू Right. बताओगे? See, मैम, what happens during menopause में क्या हो रहा है कि जो entire chain है आपके endocrine glands का, एक तो वो disturb हो गया, right? उसके बाद में particularly the gonads, the thyroid hormone and your pituitary glands also get disturbed during menopause. सो इट कैन बी रिलेटेड टू जो एक हेल्दी वुमन है, ऑब्वियसली उसमें मेनोपॉजल सिम्टम्स इतना सा भी अफेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर एक ये बॉडी है जो डिप्राइव्ड है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग और फॉलोइंग समथिंग वेरी इजी फॉर्मूलाज टू फॉर द क्विक वेट लॉस, उस टाइम वेट लॉस हो गया लेकिन अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उसके साथ क्रिएट हुई उसको इग्नोर करके when you come to this stage of entering 45 and you see that yes, menopausal is going to affect me, hot flushes are there, irritability, anxiety disorders, like depression also. So if we see those women, they are not considering that their previous years also affected their this stage. तो अगर हम देखा जाए तो हाउएवर जिनको पता नहीं है कि गुड हेल्थ को एंजॉय कैसे करना है और वो उल्टा डायटेटिक एरर्स अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं ड्यू टू फॉल्स ईटिंग पैटर्न्स, तो व्हाट हैपेंस, द मेनोपॉजल सिम्टम्स विल इंक्रीज. दिस विल फर्दर लीड टू एक्सेस menstrual flow in some cases. There may be a chances of insomnia, like decreased interest in doing anything, and laziness is there. They feel all the time pain and bloating, and they see कि inflammation body के अंदर increase हो रहा है. So these are the things. So इसको prevent कैसे कर सकते हो? When you are entering, और जब आपको पता है कि आप अपने 30s मिड लाइफ आपकी बहुत मैटर कर रही है इस चीज में, तो मिड लाइफ में आपको अपनी बॉडी को एक ऐसा न्यूट्रिशन ट्रैक पे लेके आना है जिसमें आपको एक हेल्दी प्रोटीन कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, आपको हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग द हेल्दी फैट्स एंड वाइटामिन एंड मिनरल्स. उस टाइम पे हमें ये फोकस नहीं करना है कि हम लो कार्ब डाइट पे जाएं, हम बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट पे चले. नो, a plate should be of a balanced meal in which equal proportion in right amount of protein, carbohydrates, your fats and your vitamins and minerals should be there, so that जो आपको ये मेनोपॉजल सिम्टम्स जब आएंगे तो बॉडी को अफेक्ट कुछ नहीं होने वाला. अगर आप देख रहे हो उस टाइम पे आप अपनी टीनेज में, हम देखते हैं आजकल लड़कियां दूध पीना छोड़ देती हैं. दे डोंट नो दैट कि ऑब्वियसली जब मेनोपॉज होगा तब भी बॉडी के अंदर से कैल्शियम डिप्लीट होगा. तो उस चीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होने से आप पहले ही उसका ध्यान रखें, आप उन चीजों को बचा सकते हो अगर आप अपना न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड
और मेटाबॉलिक बैलेंस के थ्रू इफ सम एनरोल्स, तो आप अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर अप अभी कर सकते हो, ताकि आपका आने वाला जो बिल्कुल कल ठीक. है वो सो प्रिवेंट हो इट्स पाए. नॉट जस्ट अबाउट करेक्शन, इट्स मोर अबाउट प्रिवेंशन ऑल्सो. जैसे आप बोल रहे हो कि एट यस. ईच स्टेज ऑफ लाइफ जो नरिशमेंट रिक्वायर्ड है. और ठीक है, मान लिया अगर किसी को दूध पसंद नहीं है, नहीं लिया, बट एटलीस्ट दे नो अदर प्रोटीन्स विच आर गुड फॉर देम, बट दे आर नरिशिंग देमसेल्व्स वेल. हर मील पे अपने बॉडी के मुनासिब प्रोटीन वो ले रहे हैं, विच मेटाबॉलिक बैलेंस हेल्प्स टू लेट यू नो क्या अमाउंट लेना है, so that you can take care of your bone health and your overall nourishment. Yes. So I think यस. we will end today. We've taken quite a good time. So it was great to have you, यस. Tanu, and discuss this very important topic about women health. And we request everyone, if you still have queries, you may please message them to us, or message them to Tanu at DietSys by Tanu, or at Metabolic Balance India. We'll connect with you. Tanu Gupta is practicing in Punjab. And if you have queries, if you are in or around Mandi Gobindgarh, please connect with her and resolve your queries. Thank you so much for joining us. यस. Thank थैंक यू सो Bye मच. bye. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.